This was the letter they came with saying this is an High Court order, but this was just a memo, and forcibly got the vehicles inside and forcibly threatened our staff and filled all the 3 to 4 vehicles with 30 bulls, while the case was of 23 bulls. Secondly, no prior notice was given to the foundation or no letter was received by the Gaushala. Our senior volunteer, Ms. Meenakshi, who was present there at the moment, she was manhandled, threatened, and she has got in such a state of shock that she is on a medical treatment now. The doctors have completely advised her bed rest. She has collapsed many times till now. Her condition is so critical. In fact, I have also got the dress that she was wearing that day. It is all torn. I'll also show you the dress now. She was physically manhandled. Her dress was torn from many places. She is in a complete state of shock. And going against the law, the mafia people also made the police believe that it is a High Court order, which was not. They took the cattle in violation of the transport of animal rules, center motor vehicle rules. They just barged into the premises without any notice, prior information or any warrant, and threatened to instigate the landowners to force the Gaushala volunteers and keepers, and also threatened us that they are going to close the Gaushala. In accordance, continuing with the same incident, yesterday I was personally present at the Gaushala, and a mob of more than 100 mafia people started throwing stones on me. And we have the entire recording, the stone pebbles, everything is recorded. The staff were threatened, their phones were forcibly taken, and the phones have not been returned till now. The cattle, the bulls taken away, were tagged by the Gaushala, while the cattle which had come, the 23 bulls case property which had come, they were untagged. So randomly, they just picked up any random bulls, healthy bulls, and they put them in the transport and they left the Gaushala forcibly. We did approach the Home Minister, sir, yesterday, and he has promised us justice. The police is also promising us justice, and we are looking forward to each and every support at the moment. And I would request each and every media person present here, please extend your support and put your word also forward to the Home Minister and get the cattle back. This is the condition that we received the cattle in. And of all the 23 bulls case, of them, these are the condition that we have received, of which many must have died also. Then how can the mafia take away 30 bulls? This is the picture in the vehicle itself. और जब हमारे सीनियर वॉलंटियर वहाँ पर थे और जिस तरीके से माफिया ने अंदर आके जो मन चाहे वो उठाकर ले गए, उसका एक सबूत अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो में वॉलंटियर क्लियरली बता रहे हैं कि ये आपका नहीं है, इस पे टैग है जो आपके आए थे, वो टैग ये कलर भी नहीं जानता है अपने बैल का, पर ये फोर्सिबली ले गए।
तो हमने होम मिनिस्टर सर को अपील की है और उन्होंने हमारी अपील को देखा है और प्रॉमिस किया है सपोर्ट के लिए, और पुलिस ने कहा भी हम सपोर्ट का हम वी आर वेटिंग फॉर देयर सपोर्ट आल्सो एंड वी आर लुकिंग forward to get the cattle back and get the justice and the action. 100 के ऊपर जो मॉब आए थे वो सारा हमारे पास वीडियोस है, आपको जिसको भी चाहिए आप ले सकते हैं। और जो फोर्सिबली माफिया अंदर आई थी बुल्स ले जाने, वो भी हमारे पास वीडियोस है, पिक्चर्स हमने आपको दिखाए हैं। जिस कंडीशन में हमारे पास कैटल आते हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और बीएसएफ लेटर्स आपको दिए जाएंगे जिसमें बीएसएफ ने ध्यान फाउंडेशन को लिखित में दिया है कि ध्यान फाउंडेशन इज द ओनली फाउंडेशन दैट इज स्टैंडिंग विद देम एंड हेल्पिंग सेव द कैटल। जो इंसिडेंट जो हुआ ध्यान फाउंडेशन गौशाला में, हम उसकी पूरी उसकी भर्त्सना करते हैं। वी कंडम सच इंसिडेंट। Animals are brought to the goshala illegally. There is a rule that only 6 cattle only should be transported in the transport. 5 trucks, such a big bulls, they were brought for slaughter illegally. And illegally, after bringing this illegal slaughter, the court order, they brought a ex parte court order. गौशाला was not informed. गौशाला को पार्टी तक नहीं बनाया और उनको बिना पार्टी बना करके भी हमारे को बिना इंफॉर्मेशन के वो ऑर्डर लेकर के आ गए। कानून की जो रक्षा करने के लिए जो लोग बैठे हैं, अगर वही लोग कानून का ही अगर दुरुपयोग कर देंगे, कानून का ही उल्लंघन कर देंगे तो क्या बचेगा? फिर डेमोक्रेसी में क्या है? हम रोज अपने डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, कहाँ है डेमोक्रेसी? कहाँ है डेमोक्रेसी? कानून बना हुआ है, आप बुल्स को नहीं काट सकते, आप बुल्स के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट है, वो एक्ट का आपने उसका पूरा उल्लंघन करके, पूरा उसका वायलेशन करके आप एनिमल्स को लेके आए, बुल्स को लेकर के आए पाए, फिर उसके बावजूद भी और है हिंडरनेस, ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, डीजीपी साहब से निवेदन करता हूँ, होम सेक्रेटरी साहब से निवेदन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि तुरंत ये जो घटना घटी है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तुरंत जो वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनको भी उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। और जो दूसरे वहाँ पर कुछ माफिया लोग भी वहाँ आकर के गौशाला का जो रोज जो गाय को पाल रहे हैं, गौशाला मैनेजमेंट को जो तंग कर रहे हैं, उनको हरेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और जो बुल्स लेकर के गए हैं वो इलीगल लेकर गए, इसके लिए हम आगे की कानूनी कार्रवाई करके हाई कोर्ट में केस फाइल करके और दूसरे अपर कोर्ट में केस फाइल करके उनको ये वापस ये जो बैल को लेके गए उनको रिस्टोर करो, गौशाला में वापस उनका ऑर्डर ला करके वापस ये ऑर्डर ला करके इनको रिस्टोर करो। फिर कानून का जो कानून बना हुआ है, पूरा कानून के खिलाफ काम हुआ है। जो कानून जो चट्टा जो बना हुआ है उसके खिलाफ में जो काम हुआ है उसके विरोध के अंदर कोर्ट से ऑर्डर ला करके, ऊपर कोर्ट से ऑर्डर ला करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत या तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके एक जो बुल्स है उनको वापस अपने को ला करके गौशाला में ला करके देना चाहिए। दूसरी और जो इनके ऊपर जो मैनेजमेंट के ऊपर जो हरेसमेंट हुआ मैनेजमेंट के साथ में, जो मैन हैंडल हुआ है, उसके लिए जो दोषी जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो गाय रक्षा करते हैं या इन गुंडों से जो गाय छुड़ाते हैं, इस वेदनाओं को देखते हुए जो यहाँ पे घटना घटी 4 दिन पहले ध्यान फाउंडेशन गौशाला मुचिंतल शमशाबाद में, इसको खंडन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित जो आए हुए हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे आने वाले थे आज,
लेकिन कुछ ऐसा संवेदना हमारा भी रहता है प्रशासन के प्रति, जिस स्टेट में हम रहते हैं उनके प्रति, क्योंकि उनके राज्य में हम लोग रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी जो अच्छाइयों को हम लोग थोड़ा सराहनीय करना है। तो जिस तरह से हजारों गाय बकरीद में आए जाते हैं, कुछ हम लोग बचा करके लेके आ जाते हैं, बाकी तो चले जाते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो हम देख पाते हैं और अगर पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन हम करते हैं तो हमें सहायता करते हैं, वो लोग गौशाला तक पहुंचाते हैं, एफआईआर करते हैं। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना, जो हम देखते हैं उसी को बचा पाते हैं। लेकिन जो अनजाने में हजारों गायें चली जाती है कत्लखाना में अनलीगल तरह से, उसको बचाने के लिए तो कानून है। जो कानून तो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और उस सरकार के जिम्मेदारी बनता है कि अनलीगल से अगर कोई काम अगर हो तो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। लेकिन नहीं होने के कारण जो घटना घटा वो बहुत निंदनीय है। पूरे भारत देश के गौ भक्तों के लिए नहीं, पूरे सनातनियों के लिए निंदनीय है कि जिस तरह से 100 गुंडे आकर के ध्यान फाउंडेशन गौशाला के अंदर में, और जिस तरह से वहां पे संरक्षण करने के लिए सेवकों के ऊपर में अत्याचार करना, उनसे मोबाइल फोन छीन लेना और उनको धमकाना कि तुम लोग ज्यादा बोलोगे तुम्हारे ऊपर में एफआईआर कर करके हम अंदर कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिस तरह से कानून है उस तरह से आप अगर फॉलो करते हैं तो गौशाला में अगर आ भी गई है बुल्स तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन उसके एक प्रक्रिया होता है, संविधान से चलता है ना देश, क्या अपने मनमानी चलता है। लेकिन जिस तरह से ध्यान फाउंडेशन में मनमानी किया गया किसी के भी द्वारा, वह गलत है, निंदनीय है। उस निंदनीय को संबोधन करने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यह है कि यहाँ के गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो भी हमारे कानून के तहत से लिखा हुआ है, संविधान में कहा गया है, उसको फॉलो कर करके हमें पूरे सुरक्षित और रक्षा करना चाहिए। जय गोमाता, ओम नमो वेंकटेशाय। ముందుగా పత్రికా మిత్రులకి అందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, అందరికీ తెలుసు ఈ భారతదేశంలో అత్యధికంగా గోవులు చిత్రహింసలకి గురై కబేలాలకి అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటిది నిత్యం జరుగుతున్నది. గోహింస ఆగాలి, గోహత్యలు ఆపాలి, కబేలాలు మూసివేయాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటి గోవులని రక్షించి వాటిని సంరక్షించడం కోసం అనేక వేద ప్రయాసాలు గురి రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు దాతల ద్వారా గోశాలను నిర్వహిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను.